Any idea about public administration? Okay. 99% students who opt for public administration in civil services, they don't have any prior background of this subject. 99% are almost freshers in this subject, and they are the top scorers. And it is one of the most successful and sought after in civil services. So you have chosen a right subject. Don't worry about it. It is interrelated. It is interdisciplinary. It is related to political science, economy, management, planning, sociology, so many subjects. It's a very interdisciplinary, very interesting subject. So very good afternoon to all of you, all my online students. Today we are going to start second unit of public administration paper 1, and it is considered to be very important unit because it is related to administrative thinkers. And I don't know why, but most of the students, they fear this particular unit, this particular chapter. They are so dreadful about administrative thinkers. सर ये तो बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा हमको इसी में कठिनाई होती है. And after going through my lectures, you will find that it is one of the most easiest part in this syllabus of public administration. So don't worry about it. Just be relaxed and let us try to get into the chapter of introduction to the study of public administration that we have already done, and now we are going to start the second chapter, that is second unit, introduction to administrative thinkers. The name of the second chapter is exactly administrative thought. But before we start administrative thought, before we discuss administrative thought and thinkers, we must know why there was need of any theory in any subject, and why there is a need of theory in public administration, and what are its objectives. Why do we study this particular portion in public administration? तो हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम का दूसरा अध्याय है प्रथम प्रश्न पत्र का, और वो है प्रशासनिक चिंतक या प्रशासनिक चिंतन. लेकिन इससे पहले कि हम प्रशासनिक चिंतकों के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उनके बारे में जानें, सुने, पढ़ें और समझें, सबसे पहली आवश्यकता तो इसी बात की है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि किसी भी विषय में सिद्धांत क्यों पढ़ाए जाते हैं. आप चाहें कला के छात्र हों, विज्ञान के छात्र हों, आप चाहें इतिहास पढ़ते हों, अर्थशास्त्र पढ़ते हों, आप चाहें गणित पढ़ते हों, आप भौतिकी विज्ञान या आप रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हों, हर विषय में एक न एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है जो उसके सिद्धांतों और विचारों से जुड़ा होता है. तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोक प्रशासन में प्रशासनिक चिंतकों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, या ये प्रशासनिक चिंतकों से जुड़ा हुआ अध्याय क्यों रखा गया है.
So irrespective of the subject that you belong to, whether it is economics, sociology, management, physics, chemistry, be it a subject of science or arts, there are some theories in it which you study. So why there are theories in any subject? And when we talk about why there are any theories in any subject, then we must also try to understand and answer this question, why there is a need of administrative thinkers and administrative thought in our syllabus. So any idea? कुछ है दिमाग में कि ये सिद्धांत या विचार क्या होते हैं? लैटिन भाषा का एक टर्म है क्वेपिक्स. इसी से बना है थियोरिया. क्यूपेक्स, थियोरिया. And theoria means to view. To look at. To contemplate. यानी कि इसका अर्थ होता है देखना, दृष्टिकोण, कुछ विचार या सिद्धांत प्रतिपादित करना, प्रतिपादन. तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम फिजिक्स की थियरीज पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की थियरीज पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स की थियरीज पढ़ते हैं. और इसलिए जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज होंगी जिसको हम पढ़ेंगे. तो मेरा पहला सवाल यही था कि किसी भी विषय में हम सिद्धांतों या थियरीज को पढ़ते ही क्यों, जरूरत क्या है? और यही प्रश्न लागू होता है लोक प्रशासन पर भी कि लोक प्रशासन में हम सिद्धांतों को क्यों पढ़ते, विचारकों के बारे में क्यों जानते. तो दरअसल इसको कुछ यूं समझना होगा. Whenever as a human being we confront any problem in our lives, problem related to any field, immediately when we come in contact with any problem, then we try to develop its solution. We try to overcome this problem. We try to rectify the problem. We try to come out of this problem. And the moment we try to come out of the problem, we start developing ideas, brainstorming. How we can come out of this problem? What can help us to come out of this problem? And that thinking, that process in our subconscious mind, then it gives certain ideas and principles. Those ideas and principles which are put up by the scholars of that subject to get rid of those problems, they are called theses. And the moment the scholars, the intellectuals of that particular area, of that particular subject, when they put certain principles on ground so as to come out that problem, that is called thesis, then
the other group of scholars find out certain weaknesses and criticism in it. They try to look at the weaknesses and the flaws of that thesis as a criticism, then comes out which is called antithesis. Which is the criticism of thesis, opposite view of thesis, contradictory view of thesis. And then with thesis and antithesis, there emerges a middle path where we try to develop a balance, where we try to develop a certain kind of equilibrium, combining both the ideas so as to make it more pragmatic, useful and relevant, and that becomes synthesis. So the process of thesis, antithesis and synthesis continue to take place in our day-to-day lives from birth to death. Problem never ceases to exist. It only changes its forms and manifestations. समस्याएं कभी समाप्त नहीं। जब तक ये जीवन है, समस्याएं हमारे पूरे जीवन में जन्म से मृत्यु तक बनी ही रहती हैं, केवल उनके रूप और प्रकार बदल जाते हैं। आज हमारे जीवन में कुछ और समस्याएं हैं, कल कुछ और होंगी, आने वाले समय में कुछ और होंगी, अतीत में कुछ और हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाए, समस्याओं से शून्य हो जाए। वो कहते हैं ना कि अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, यामिनी हो तब न हो संभव नहीं, मत शिकायत कर दुखी है तू यहां, जिंदगी हो गम न हो संभव नहीं। तो जिंदगी हो और गम न हो, ये तो संभव ही नहीं। इसी को फैज साहब ने लिखा है, अपने अपने अल्फाज में उन्होंने कहा है कि लफ्ज आखिर लफ्ज है सरगम नहीं है, लफ्ज आखिर लफ्ज है सरगम नहीं है, अश्क आखिर अश्क है शबनम नहीं है, और उम्र के त्योहार में रोना मना है, जिंदगी है जिंदगी मातम नहीं। तो जब भी हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना करते हैं, हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम अपने मन मस्तिष्क में कुछ विचार, कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। उस समस्या के क्षेत्र के जो जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, वो तरह तरह के विचार सामने रखते हैं, जिससे कि उस समस्या को नियंत्रित किया जा सके, उस समस्या से दूर हुआ जा सके, उस समस्या पर काबू पाया जा सके, उस समस्या को टाला जा सके, उस समस्या को रोका जा सके, उस समस्या से बाहर आया जा सके, उस समस्या का समाधान खोजा जा सके। वह जो भी कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं वाद। और जैसे ही वाद प्रस्तुत होता है समाधान के रूप में, कुछ लोग उसकी आलोचना, उसके प्रतिपक्ष में आ जाते हैं, उसकी कमियां, उसके दोष क्या हैं ये बताते हैं। तो उसकी आलोचना, उसके प्रतिपक्ष, उसकी कमियों, उसके विरोध में जो विचार आता है उसको प्रतिवाद कहते हैं। और इस तरह से वाद और प्रतिवाद एक दूसरे के विपरीत विचार है, विरोधाभासी विचार है। और फिर धीरे 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 उस विषय के विशेषज्ञ और जानकार एक मध्य मार्ग, एक संतुलित
एक परिपक्व विचारधारा बनाने का प्रयास करते हैं जो अधिक व्यवहारिक होती है, जिस समस्या का कहीं अधिक बेहतर समाधान हो सकता है। और वाद प्रतिवाद से तब मिलकर क्या बनता है? संवाद। और इसलिए कि जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, उनके केवल रूप और प्रकार बदलते हैं। तो उसको दूर करने के लिए वाद आते रहते हैं, वाद के विरोध में प्रतिवाद आते रहते हैं, और प्रतिवाद और वाद से मिलकर संवाद होता रहता है। तो हमारे जीवन में वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है और नए नए सिद्धांत बनते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी 2020-21 में जब कोविड ने सारी दुनिया को अपनी महामारी में ले लिया था, तो 1920 के बाद दुनिया में ऐसी बड़ी महामारी जैसी कोविड ने अपना कहर ढाया लोगों ने देखा नहीं था 100 साल बाद। और तब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तरह तरह के नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत स्थापित किए कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें, घरों के बाहर ना निकलें। जहां पर ये ज्यादा समस्या बड़ी होती चली गई, वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए, लोग एक दूसरे से आ जाकर मिलजुल कर संपर्क न सकें, लॉकडाउन लगा दिया गया। ट्रेन, हवाई जहाज, सड़क, सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। और इस तरीके से धीरे धीरे एक समस्या हमारे सामने आई थी, जिससे हम धीरे धीरे बाहर निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक बाहर आ चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते कि आज की तारीख में कोविड पूरी तरीके से दुनिया से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, जो कोविड का खौफ था, जो कहर था, जो उसने लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया, हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया, अब बहुत हद तक धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति की ओर लौट चुके हैं। तो जब सरकार ने, दुनिया ने, देश ने, समाज ने कोविड जैसी समस्या सामने देखी, तो उसके दूर करने के उपाय जो सामने आए वो वाद। अब उन उपायों में जो कमियां सामने आई, जो लॉकडाउन लगने से और बार बार बहुत ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से और फेस मास्क लगाए रखने से, और जिस तरीके से लोगों ने बहुत ज्यादा काढ़ा पीना शुरू किया, तरह तरह के ड्रग्स लेनी शुरू की, और जिस तरीके से उसमें कमियां ढूंढी गई, उसके बड़े नुकसानात भी देखे गए, उसके बहुत दुष्प्रभाव भी पड़े। तो उसके विरोध में एक सिद्धांत आया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, जैसा कि इसमें कहा गया था कि ये करना चाहिए, वो प्रतिवाद कर। और फिर आज धीरे धीरे हमने वाद प्रतिवाद दोनों को मिला करके एक संवाद, एक मध्यम मार्ग, एक उचित रास्ता ढूंढ लिया। तो इस तरह से जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस या आर्ट का कोई सब्जेक्ट हो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जब प्रॉब्लम्स उस सब्जेक्ट के स्कॉलर्स के सामने आती हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश के लिए जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं, वो थीसिस कहलाते हैं। उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का जो क्रिटिसिज्म होता है, जो उसमें कमियां पाई जाती है, जो उसके दोष होते हैं, उसको एंटीथीसिस। और फिर थीसिस और एंटीथीसिस के मेलजोल से एक ज्यादा प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, यूजफुल, रेलिवेंट, ज्यादा व्यवहारिक, तार्किक, संतुलित, परिपक्व विचारधारा सामने आती है, जो वाद और प्रतिवाद दोनों का समागम होती है, उसको हम संवाद कहते हैं। तो जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर है, तब से उसकी समस्याएं कुछ ना कुछ हमेशा बनी रही हैं जीवन, हर क्षेत्र। और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सिद्धांत आते रहे हैं, इसलिए आज भी आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी आते रहे।
और इसलिए थियरी बिल्डिंग की जो प्रोसेस है, सिद्धांतों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। जब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी कि कैसे हम उससे निकलें। उसके बाद आपने सोचा कि हाई स्कूल इंटर तो आपने बहुत अच्छे नंबर से 80, 90, 100% तक लोग स्कोर कर रहे हैं, तो अब इंजीनियरिंग या मेडिकल या मैनेजमेंट या लॉ या क्लैट या किस एरिया में हमको अब जाना है, अब ये दूसरी तरीके की प्रॉब्लम। तो आपने फिर उसका सोल्यूशन, फिर आज आप इस नतीजे पर पहुंचे कि साहब हमने बीबीए, एमबीए, एमए, बीए, एलएलबी या जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी कोर्स करना था वो कर लिया, लेकिन अब हमें तो सिविल सर्विसेज की ओर जाना। तो आपके सामने सिविल सर्विसेज को कैसे क्वालिफाई करें, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे क्रैक करें, सिविल सर्विसेज में कैसे सफलता और कामयाबी हासिल करें, अब ये समस्या है। तो इसके लिए आप समाधान ढूंढ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। हमारे आपके निजी जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा बुरा वक्त हम लोग को देखना पड़ता है, बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं, किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी दिवालियेपन की स्थिति हो जाती है, कभी पैसा बहुत कम पड़ जाता है, जरूरतें बढ़ती जाती हैं, खत्म ही नहीं होता कभी जरूरतों का पहाड़, खत्म ही नहीं होता कभी जरूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने, क्योंकि उनकी जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तो इंसान जब तक उसका शरीर, उसका जिस्म साथ देता है, काम करता ही रहता है, काम करता ही रहता है, क्योंकि जरूरतें, दिक्कतें, दुश्वारियां, परेशानियां ये कभी खत्म नहीं, ये बदलती हैं अपने स्वरूप को, अपने तौर तरीके को। और साहिर साहब तो कहते हैं कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो। तो लोक प्रशासन में भी ऐसा ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, 15th-16th सेंचुरी में रेनेसां, जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास। नतीजा क्या हुआ, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में हमने देखा कि दुनिया में, खासतौर से पश्चिम के देशों में, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की वजह से अब तक जो काम करने के तौर तरीके थे उनमें भारी बदलाव आ गया। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का आविष्कार, भाप के इंजन चलने, छोटे मोटे घरों पे काम करने की जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कल कारखाने, उद्योग लगा दिए गए, जहां एक छत के नीचे सैकड़ों कर्मचारी अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। तो अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, औद्योगिक उत्पादन में, संगठनों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में जिस तरीके से काम होता चला आ रहा था, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो उसमें बदलाव आया, जो काम करने के तौर तरीके बदले, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, नई नई मशीनें आई, जो पहले 10 इंसान 100 दिन में काम करके जितना उत्पादन कर पाते थे, अब एक मशीन आ गई जिसने 24 घंटे में अकेले ही उतना या उससे ज्यादा उत्पादन कर दिया। So production was increased manifold because of mechanization, because of new machineries, new technologies, new inventions,
new discoveries. The method and manner of production changed. And because the method and manner of production were changed, the entire process of management and organization was also changed. See, the older methods which were being deployed in the pre-industrial revolution era, they were not able to correspond to the requirements of post-industrial era. And hence, there emerged problems in the field of industry, management and administration. Thus, the scholars of administration, management and industry, they presented their ideas, how to sort out those problems. And the moment they presented their ideas, that became a set of theories called thesis, which in public administration is called as classical theory of organization. And the first set of theory which were presented as classical theory of organization is therefore known as thesis. But it was criticized. As a result, came the opposite ideas of sets and principles, opposite view, and that was known as human relations theory, HRT, that is antithesis, which is completely opposite to classical theory. And with this opposite view, thesis and antithesis, came another set of theory in public administration, which is the balance of mixture of both the ideas, matured and balanced view. Which is known as behavioral theory of organization, and this is synthesis. तो हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति के बाद संगठन में उत्पादन के कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव आया, और इस तरह से जो पुराने तौर तरीके चलते चले आ रहे थे उस जमाने तक, अब वो नई जरूरतों के हिसाब से, नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के हिसाब से, नई समस्याओं के हिसाब से अधूरे पड़ रहे थे, उनसे काम नहीं चल सकता था। उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो पहला सिद्धांतों का समूह सामने आया, उसको कहा गया शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। जो कि लोक प्रशासन में वाद कहलाता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां देखी गई, उसमें कुछ दोष पाए गए, उसमें कुछ समस्याएं नजर आई, तो उसका विरोधी विचार, उसका विरोधी दृष्टिकोण सामने आया, जिसको कहा गया मानव संबंध सिद्धांत। और ये मानव संबंध सिद्धांत जो था, ये प्रतिवाद बना। लेकिन इस विरोधी विचारधारा में, प्रतिवाद की विचारधारा में, जो इसकी आलोचना के फलस्वरूप आया, इसमें भी कुछ कमियां थी। और फिर वाद और प्रतिवाद, इन दोनों को मिलाकर के अधिक व्यवहारिक, अधिक संतुलित, अधिक परिपक्व, मध्यमार्गी विचारधारा सामने आई, जो अधिक परिपक्व और संतुलित थी। और इसे कहा गया बिहेवियरल थ्योरी या संगठन का व्यवहारवादी सिद्धांत। और ये बना संवाद।
तो इस तरह से लोक प्रशासन में भी वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया चली, और इसलिए हम लोक प्रशासन के भी सिद्धांतों को 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। वाद के रूप में शास्त्रीय संगठन सिद्धांत, प्रतिवाद के रूप में मानव संबंध सिद्धांत, और संवाद के रूप में व्यवहारवादी सिद्धांत। So we can classify all the type of administrative thinkers and their theories in 3 broad categories. First, as thesis, classical theory of organization. Second, as its criticism or opposite view, human relations theory, which is antithesis. And then the third and the most balanced and matured view, which is behavioral theory of organization, which is the synthesis in public administration. अब रेनेसां के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, नहीं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुना है? सर क्या मतलब होता है? मशीन्स आई, पहले क्या होता, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक होता क्या था कि उस समय के दौर में रहने वाले जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, जो इस पृथ्वी पर रहते थे, उनको अगर अपनी जरूरत कपड़ा पहनने की महसूस होती थी तो वो अपने घर के पास के किसी बाजार से कपड़ा ले आते थे। वो कपड़ा कौन बनाता था? अगर भारतीय उदाहरण लें तो मान लें भारतीय समाज में एक परिवार था जो कपड़ा कपास से पहले बुनता था, उसको जुलाहा परिवार कहते थे, और फिर वो घर में ही कपास से हथकरघा मशीन, हाथ से मशीन चला करके कपड़ा तैयार करता था। अपने ही छोटे से घर के एक हिस्से में उसने हाथ से कपड़ा बनाने वाली मशीन लगा रखी थी, जिसको वो चला चला करके दिन भर में 2, 4, 5 मीटर तैयार करता था। जब थक गया वही काम रोक करके चटाई बिछाकर जमीन पर सो गया। इतनी देर में उसके घर में मान लीजिए उसकी पत्नी है, उसने देखा 3-4 मीटर कपड़ा तो तैयार करके रखा ही हुआ है। उसने उसको रंग करके डिजाइन बनाकर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। अब कपड़ा बनकर तैयार हो गया, उस पर रंग और डिजाइन भी बन गई। अगले दिन उनका जो परिवार का बच्चा था, नौजवान था, या वो खुद बाजार में गए और कपड़ा बेचे। तो एक घर में एक छत के नीचे 3-4 लोग मिल करके कपड़ा बनाने का कारोबार कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई। अब हाथ से चलने वाली मशीन की जगह पर, हथकरघा की जगह पर, हैंडलूम की जगह पर पावर लूम्स आ गए। एक छोटे से घर के छोटे से हिस्से में हाथ से चलाने वाली मशीन जो रखी हुई थी, जिसमें घर के ही सदस्य आपस में मिलजुल करके काम करके कपड़ा बना रहे थे, अब उसकी जगह पर सैकड़ों एकड़ में फैली हुई टेक्सटाइल फैक्ट्री लग गई। अब उस सैकड़ों एकड़ में फैली हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल फैक्ट्री में अब केवल 3 या 4 किसी एक घर और परिवार के लोग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार काम हो रहा है, और एक एक शिफ्ट में 250, 300, 500, 1000 आदमी काम कर रहे हैं। अब एक एक छत के नीचे 250, 300, 500, 1000 आदमी काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पावर लूम्स लग गई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मशीन्स लग गई हैं। तो जो पहले घर में कपड़ा बुनने वाले और बनाने वाले लोग थे, वो जो घर में 3-4 मीटर कपड़ा
दिन भर में तैयार करते थे। ये जो एक इंडस्ट्री फैक्ट्री टेक्सटाइल की लगी, हथकरघा कंपनी, एक दिन में ये 300-400 मीटर कपड़ा बनाने लगी। तो अब जाहिर सी बात है समस्याएं तो आएंगी कि पहले एक घर में एक छत के नीचे एक ही परिवार के लोग आपस में मिल करके श्रम विभाजन या कार्य का बंटवारा करके कपड़ा बना रहे थे, बाजार में जाकर बेच रहे थे, और सब एक ही घर एक ही परिवार के थे। लेकिन अब तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, नई इंडस्ट्री, नई फैक्ट्री, नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब एक छत के नीचे एक साथ 3-4 की जगह 300-400 लोग काम करने लगे। अब ये जो 300-400 लोग काम कर रहे हैं, ये नई नई मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उत्पादन और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये जो 300-400-500 लोग एक छत के नीचे एक साथ काम कर रहे हैं, अब इसमें स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, उस फील्ड के एक्सपर्ट आ रहे हैं। अब कपड़ा बनाने वाला, मशीन चलाने वाला, उस पर डिजाइन करने वाला, उसकी मार्केटिंग करने वाला, उसकी सेल्स और अकाउंट्स देखने वाला, उसका फाइनेंस देखने वाला, सबके लिए अलग अलग टीम की जरूरत पड़ेगी, सबके लिए अलग अलग एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं रह गया कि कोई एक आदमी हजारों मीटर कपड़ा पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी सारी डिजाइनिंग, उसकी कलरिंग खुद कर ले, तो डिजाइन और कलरिंग डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा। अब इतने सारे 400-500 लोगों के बीच कैसे डिवीजन ऑफ वर्क होगा, कैसे काम के घंटे तय किए जाएंगे, कौन क्या क्या काम करेगा, किसके ड्यूटी आवर्स क्या होंगे, इसके लिए फिर एक पर्सोनल डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग बनाना पड़ेगा। अब जब इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर इतना ज्यादा काम करेंगे तो उनको सैलरी या कुछ रेमुनरेशन या कुछ ऑनरेरियम या पारिश्रमिक या वेतन या भत्ता देना पड़ेगा। तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि कितना कपड़ा बाजार में बिका, कितने दूर तक पहुंचा, कितना माल खरीदा गया, कहां पर कितना बेचा गया, उसका हिसाब किताब करने के लिए फाइनेंस और अकाउंट्स का सेक्शन बनाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा बेचना भी है, तो उसके लिए सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा। अभी तक उस जुलाहे के परिवार में वो जो 3-4 व्यक्ति आपस में पति पत्नी घर के बच्चे मिल करके काम कर रहे थे, उसमें कोई सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं था, कोई फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं था, कोई कलर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइन का डिपार्टमेंट नहीं था, कोई पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन का, कार्मिक प्रशासन का डिपार्टमेंट नहीं था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, क्योंकि तब जरूरतें बहुत कम थी, उत्पादन बहुत कम था, और एक ही घर में एक छत के नीचे जितना हो रहा था वो आपस में 3-4 लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में फैक्ट्रीज और उनके एम्प्लॉयज और उनका प्रोडक्शन और उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा, तो अब जिस तरीके से घर में काम होता था वैसा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम नहीं लिया जा सकता था, तो प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो उस दौर के जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने नई नई थियरीज दी जिनको क्लासिकल थियरी कहा गया, जिसमें नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इसमें नाम आता है हेनरी फेयोल, जिन्होंने दिया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत टेलर, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत हेनरी फेयोल, और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर, आदर्श नौकरशाही प्रतिमान मैक्स वेबर। ये तीन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत।
अब इसमें दोष और कमियां जो आई उनको सबके सामने रखने वाले जो कुछ बड़े स्कॉलर्स थे, जो एंटीथीसिस उसके खिलाफ जिन्होंने बोला, उनकी कमियों को निकाला, जिसे हम ह्यूमन रिलेशंस थियरी कहते हैं। ये विचार देने वाले थे एल्टन मेयो, रोथलिसबर्गर, डिक्सन। इसमें सबसे बड़ा नाम एल्टन मेयो का है। अब ह्यूमन रिलेशंस थियरी की अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां, अपने फ्लॉज, दोष और दुर्बलताएं, तो फिर उनको भी दूर करके क्लासिकल थियरी और ह्यूमन रिलेशंस थियरी दोनों को मिला करके एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा सफल और परिपक्व विचारधारा, मध्यमार्गी विचारधारा सामने आई, जिसको लाने वाले कौन थे? चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रेंसिस लिकर्ड, डगलस मैग्रिगर, क्रिस एर्गिरिस। और इन लोगों के विचारधारा का जो थर्ड स्टेप है, जिसको हमने कहा बिहेवियरल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्यवहारवादी संगठन सिद्धांत, इन लोगों ने सामने। और इस तरीके से हमने उन सारे चिंतकों के नाम आपको बता दिए जो अभी आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ यूं समझ लें कि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं। अभी तक आपकी कहीं पर नौकरी नहीं लगी है, अभी तक आपका रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो पाया है, तो आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर पर ही 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। तो जब आप 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने समय और सुविधा के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से आपस में बैठ कर तय कर लेंगे कि भाई सुबह आ जाना या शाम को आ जाना, सैटरडे संडे को हम लोग इस टाइम पर बैठ लेंगे या एक दिन हफ्ते में ऑफ कर लेंगे। ये आपके 2 स्टूडेंट और आपके बीच की बात है, आपस में तय हो जाएगा, और जो भी आपको ट्यूशन फीस देंगे उससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अभी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और फिर एक जगह एक दिन आपका किसी कॉलेज और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब आप कॉलेज या एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे, तो आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स नहीं कर पाएंगे। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, वाइस चांसलर, जो भी उसकी पूरी टीम होगी, उसका पूरा एकेडमिक सेशन बनेगा, साल भर में कितनी क्लासेस होंगी, उसका शेड्यूल क्या होगा, क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी, किस दिन छुट्टियां होंगी, सैलरी क्या होगी, ये सारी चीजें तय करी। और आप जैसे, अब केवल आपके साथ क्लास में 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन हजारों बच्चों का मैनेजमेंट और 2 बच्चे जो आपके साथ घर में पढ़ रहे थे उनका मैनेजमेंट, फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? और इन हजारों बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अकेले टीचर नहीं हैं, जैसा कि आप घर में अकेले ट्यूशन पढ़ा रहे थे। यहां पर आपकी तरह और न जाने कितने सैकड़ों की तादाद में टीचर्स हैं जो अपने अपने अलग अलग एरियाज के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। फिर उसमें हायरार्की बनानी पड़ेगी कि जो यंगेस्ट, जूनियर मोस्ट टीचर्स होंगे उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहें, उनके बाद जो सीनियर होंगे उनको हम एसोसिएट प्रोफेसर कहें, फिर जो उनसे सबसे सीनियर होंगे वो प्रोफेसर होंगे। फिर मिनिमम अगर इतने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तब एक डिपार्टमेंट बनेगा। डिपार्टमेंट में फिर एक एचओडी होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, सेटअप बनाया,
अब कई सारे डिपार्टमेंट्स जब मिल जाएंगे तो उन डिपार्टमेंट्स को मिला करके उस सब्जेक्ट का एक हेड होगा उस पूरे डिपार्टमेंटल सेक्शंस का, जिसको डीन कहे। डीन ऑफ आर्ट्स, डीन ऑफ साइंस फैकल्टी, डीन ऑफ मैनेजमेंट फैकल्टी, डीन ऑफ लॉ फैकल्टी। तो ये कई सारे डीन जो हैं अपने अपने जिसको सुपीरियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, वो वाइस चांसलर हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब वाइस चांसलर के ऊपर फिर चांसलर, इस तरीके से एक पूरी हायरार्की बन जाए। चांसलर, वाइस चांसलर, डीन, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के क्लेरिकल ग्रेड से लेकर क्लास 4 एम्प्लॉइज तक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक बड़ा मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब घर में 2 बच्चे पढ़ाना और यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाना, ये जो फर्क है वही फर्क आ गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कामकाज के तौर तरीकों में। प्रोडक्शन, प्रॉफिट के तौर तरीके जो औद्योगिक क्रांति के पहले थे, एक घर में 2-4 लोग मिलकर काम कर रहे थे, अब उसकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। और इसलिए इन नई जरूरतों के हिसाब से अब पुराने तौर तरीके से काम नहीं चलाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है नए नए सिद्धांत, नए नए विचार सामने, और इस तरीके से ये प्रक्रिया आज तक जारी है। और अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, अब इस जॉनर में, इस एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के तरक्की के दौर में आज हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि अब धीरे धीरे मशीनों को पहले कंप्यूटर्स ने रिप्लेस किया, अब कंप्यूटर्स की जगह पर रोबोट आ गए, रोबोट की जगह अब धीरे धीरे आदमियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगी, मशीन लर्निंग आ जाएगी, चैटबॉट्स आ जाएंगे। तो आने वाले समय में जो कामकाज के तौर तरीके होंगे वो आज के तौर तरीके से बिल्कुल अलग होंगे। आज के 50 साल के बाद की दुनिया, अगर तब तक दुनिया रही, अगर कोई एटमी जंग नहीं हुई, अगर कोई ऐसी विनाशलीला प्रलय, भूकंप, जलजला, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जिससे मानव जाति पर ही संकट पैदा हो जाए, अगर ऐसी कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, न्यूक्लियर वॉर नहीं हो जाती, कोविड जैसी पैंडेमिक जिससे सारी दुनिया पर एक कहर टूट जाए, ऐसी हालात नहीं हो जाते, तो आने वाले 50 सालों में जो आज काम करने के तौर तरीके चल रहे हैं ये भी पूरी तरह बदल चुके। तब की दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेवल होगा वो आज के 2022-23 की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा आ गया। उस समय काम करने के लिए उस दौर की जरूरत के हिसाब से स्किल सेट्स की जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्टाइज की जरूरत। नाइनटीन 50s, 60s, 70s तक जब तक कंप्यूटर साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब तक बहुत लिमिटेड तरीके से वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, डेवलप हो रहा था, ज्यादातर काम हर फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस में मशीनों को चलाने का इंसान खुद करते थे, जिन्हें हम इंजीनियर्स, वर्कर्स, सुपरवाइजर, ओवरसीयर अलग अलग नामों से जानते, फोरमैन। धीरे धीरे मशीनें और एडवांस हुई, इंसानों की जगह पर उनको चलाने के लिए वो सेल्फ ऑटोमेटिक मशीन आने लगी। अब जिस मशीन को चलाने के लिए 10 इंसान की जरूरत होती थी, अब वो एक ही बस ऑन ऑफ करने के लिए एक इंसान चाहिए, उस पर कंट्रोल और सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने के लिए 1 वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर चाहिए।
आने वाले समय में जिस तरीके से रोबोटिक्स बढ़ रहा है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, जिस तरीके से मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वर्क प्लेस पर बहुत सारा काम अब मशीन और रोबोट्स और कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड जो डिवाइसेस हैं वो आ जाएंगे। तो उनको हैंडल और मॉनिटर और सुपरवाइज करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए और भी कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, और वो भी उन लोगों की जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, जिनका स्किल सेट उस तौर तरीके का होगा। जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब तक हमने अपनी जिंदगी में कंप्यूटर देखा भी नहीं था। पहली बार 1990s में बड़े पैमाने पर धीरे धीरे जब भारत में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई, और तब मैं हाईकोर्ट इलाहाबाद में सर्विस करता था, तो पहली बार 1992 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारे यहाँ कंप्यूटर आया। तब हम लोगों ने कंप्यूटर देखा। 92, 30 साल पहले। तब तक हम ग्रेजुएशन कर चुके थे। इतनी पढ़ाई हो गई थी और हमने कंप्यूटर अपने आंखों से देखा नहीं था, सुना था, नाम की कुछ कंप्यूटर नाम की चीज होती। आज का बच्चा तो पैदा ही होता है कंप्यूटर से घिरे हुए हॉस्पिटल और मशीन्स के बीच में। ईमेल, इंटरनेट, गूगल, वेबसाइट्स, पोर्टल्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ये करीब हमारे समय में बहुत पढ़े लिखे लोग भी इनसे वाकिफ नहीं थे, क्योंकि तब उस तरीके के स्किल सेट्स और एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं थी। 2000 तक आते आते पहले हॉटमेल आया, फिर yahoo.com आया, फिर gmail.com आया, times.com आया, जीमेल चल रहा है। सर्च इंजन में गूगल आ गया, और भी क्रोम आ गया, और वेब सर्वर्स आ गए। धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा, नए स्किल सेट्स एक्वायर किए, क्योंकि अब कंप्यूटर और इंटरनेट चलाने की जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना ABCD और 1 2 3 यानी अल्फाबेट्स ग्रामर के लिए जितना जरूरी है, जोड़ने घटाने के लिए संख्या का ज्ञान होना जितना जरूरी है, न्यूमेरल्स की जानकारी जितनी जरूरी है, आज कामकाज करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट उतनी ही जरूरत बन चुके। तो अगर आज के दौर में, आज की तारीख में आप इलिटरेट नहीं हैं, तो आप इलिटरेट हैं। अगर आप ई साक्षर, इलेक्ट्रॉनिकली साक्षर नहीं है, तो आप एक तरह से निरक्षर हैं, क्योंकि आप आने वाले समय में तो कोई काम ही नहीं कर सकते। तो हर दौर में जरूरतें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, और उस हिसाब से कामकाज करने के तौर तरीके बदलते हैं। और यही तौर तरीके इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी बदलते चले गए, और इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बदलाव हमने देखा है। और उन्हीं बदलावों के आधार पर हम लोगों ने संगठन, प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े हुए जो सिद्धांत देने वाले लोग थे, उन विचारकों का अध्ययन किया, और उनके सिद्धांतों को 3 हिस्सों में बांटा। जो सबसे पहले सिद्धांत आए, वाद, जिसे हम शास्त्रीय संगठन विचारधारा कहते हैं, उसके कमियों और दोषों को दूर करने के लिए 10, 15, 20 साल में दूसरे सिद्धांत आए, जिसको हम मानव संबंध सिद्धांत या प्रतिवाद कहते हैं। उसके 10-20 साल बाद जो उसमें कमियां थी, उनको खोजकर दूर करने की कोशिशों में तीसरा सिद्धांतों का नया दौर आया, जिसको हम संवाद या व्यवहारवादी संगठन सिद्धांत कहते हैं। तो लोक प्रशासन में विवाद, प्रतिवाद, संवाद, शास्त्रीय संगठन, मानव संबंध और व्यवहारवादी संगठन विचारधारा,
इन 3 बड़े समूहों में अब तक के सिद्धांतों को हमने लोक प्रशासन में बांटा है, जिसका अध्ययन। So you have seen that how with the passage of time things change, the method and manner of doing things, they grow and develop. New skill sets are required, new sets of expertise and knowledge is required. And when it happens so, then according to that period, then according to the needs, problems and challenges of that period, the theories are developed. And that first set of theory in public administration as thesis is called classical theory. Then over a period of 10, 15, 20 years, its weaknesses, its flaws started emerging and coming in. Then the second set of theory developed as antithesis, which is called as human relations theory. Human relations theory had its own problems, flaws and weaknesses. And then was developed the third set of theory, that is behavioral theory as synthesis. So that is how we have classified the development, growth and evolution of administrative thinking into 3 broad categories as classical theory, human relations theory and behavioral theory. Question? Question. All the points are clear? Now you can write few points. The term Quapics originally derived from Greek language. क्वेपिक्स शब्द जो मूलतः ग्रीक भाषा से लिया गया है, which means theoria, जिसका अर्थ है थियोरिया, having its literal meaning as looking at or viewing or contemplation. Looking at or viewing or contemplation, जिसका सामान्य अर्थ होता है देखना, दृष्टिकोण या विचार प्रस्तुत करना. In the field of public administration, लोक प्रशासन के क्षेत्र में स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विशेषकर औद्योगिक क्रांति के बाद न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, नए आविष्कार और खोजों ने gave rise to new technologies, नई तकनीक और प्रौद्योगिकी को जन्म दिया, which changed the entire system of method and manner of production, जिसने उत्पादन करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया. In place of small household production units, घरेलू और छोटे कुटीर उद्योगों की जगह पर now big industries, machineries,
and huge factories were built. अब नई मशीनरी और कल कारखानों का निर्माण हुआ। एज अ रिजल्ट, परिणाम था now in place of few household members, अब कुछ घरेलू सदस्यों की जगह पर there were hundreds and thousands of workers. अब सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रमिक और कर्मचारी started working under one roof, ने एक छत के नीचे काम करना शुरू किया। which gradually led to their specialization and expertise in a particular field. जिससे उनके क्षेत्र विशेष में कार्य करने का कौशल, विशेषज्ञता और दक्षता बढ़ी। leading to creation of new departments and branches in one organization itself, जिससे अब एक ही संगठन में कई सारे विभाग और शाखाएं बनानी पड़ी। Production and profit increased manifold, उत्पादन और लाभ की मात्रा कई गुना बढ़ गई। With the advancement of transport, travel and communication, यातायात, परिवहन और संचार साधनों का विकास होते जाते the market expanded from one corner to another corner of the world. बाजार विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया। Thus goods and supply chain was to be maintained. अतः वस्तु और आपूर्ति की श्रृंखला को स्थापित करना पड़ा। एज अ रिजल्ट, परिणाम था the old method and manner of doing things पुराने तौर तरीकों से काम करने के जो व्यवहार थे were not able to correspond to the present needs, problems and challenges. वो उस समय की आवश्यकताओं, समस्याओं और चुनौतियों के अनुरूप नहीं थे। Hence, अतः ग्रेजुअली, धीरे धीरे first set of new
principles were evolved in the field of organization, management and industry. संगठन, प्रबंधन और उद्योग के क्षेत्र में सिद्धांतों के प्रथम समुच्चय का विकास हुआ and a systematic and scientific study of public organization and a systematic and scientific study of public organization started developing in late 19th and earlier 20th century. अतः लोक उद्यमों और संगठनों का व्यवस्थित, विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। These new sets of principles were called as scientific management theories. सिद्धांतों के नए समूहों को वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की संज्ञा दी गई, which was led by F.W. Taylor. जिसका प्रतिपादन F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने किया। Scientific management theory is also known as Taylorism. वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को ही टेलरवाद भी कहा जाता है। Which had its resounding impact on governmental reforms in the United States as well. और इसका प्रभाव अमेरिका के लोक प्रशासन सुधार पर भी पड़ा। द कंटेम्पोररी ऑफ टेलर, टेलर के ही समकालिक there was a French scholar हेनरी फेउल, एक फ्रांसीसी विचारक थे हेनरी फेउल, who also contributed in the study of organization and management. जिन्होंने संगठन और प्रबंधन के अध्ययन के क्षेत्र में अपना भी योगदान दिया। And yet another scholar was Max Weber. और दूसरे विचारक का नाम मैक्स वेबर था। Who propounded his ideal type bureaucracy.
जिन्होंने आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत सामने रखा। The theories of these three scholars put together इन तीनों विचारकों के इस सिद्धांत को एक साथ मिलाकर known as classical theory of organization, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत के। In late 1920s and early 1930s, उन्नीस सौ 20 के दशक के उत्तरार्ध और 30 के दशक के प्रारंभ के आसपास नियोक्लासिकल और ह्यूमन रिलेशंस theory was presented. नवशास्त्रीय या मानव संबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। which was led by जॉर्ज एल्टन मेयो, जिसका नेतृत्व जॉर्ज एल्टन मेयो ने किया। And by the end of 30s and beginning of 40s, 1930s and beginning of 1940s, और 1930 के दशक के अंत और 40 के दशक के प्रारंभ में the behavioral theory was developed by scholars like व्यवहारवादी संगठन सिद्धांत निम्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, डगलस मैकग्रिगर, क्रिस एरगिरिस, एंड रेंसिस लिकर्ट एटसेट्रा, तथा रेंसिस लिकर्ट इत्यादि। This third set of theory is known as behavioral theory of organization. सिद्धांतों के इस तीसरे समूह को व्यवहारवादी संगठन सिद्धांत कहते हैं। Thus, in the field of public administration and management, अतः लोक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में these three theories इन तीनों सिद्धांतों को are termed as thesis, antithesis and synthesis, को ही वाद, प्रतिवाद और संवाद कहते हैं।
second heading, need of theory building and a comparison between CTO, HRT and BTO. And a comparative study between CTO, HRT and BTO. सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता तथा CTO, HRT और BTO का तुलनात्मक अध्ययन, तो इसको हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ भी जो आप पूछना चाहें हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, ऑफलाइन एज वेल, क्लियर? So we'll do it tomorrow. Thank you.